लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया कि पूरा जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है उसमें फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द रूल्स ऑफ जर्नल. देयर आर टू अप्रोचेस, वन ट्रेडिशनल अप्रोच, अनदर इज मॉडर्न अप्रोच. इन ट्रेडिशनल अप्रोच there are two types of account, personal and impersonal. And again impersonal, real and nominal. So personal account deals with all type of person, natural or artificial. Natural person means like you, me. We are all natural person. Artificial person is any bank, any organization, any firm like Bank of Baroda, Reliance, Rajshri Tutorials. These all are artificial person. Okay, and representative person who represents mass public. Fine. Or we can say that any prefix or suffix associated with nominal nature account means any expense or income that becomes representative personal. The rule, golden rule 1 is debit the receiver, credit the giver. All accounts are prepared from firm's point of view. Who is receiver? From firm's point of view. Who is giver? From firm point of view. So all the transactions are considered from firm's point of view because of which accounting concept? Which accounting concept? Separate entity concept. Because of existence of separate entity concept, we record all the transactions from firm's point of view, not from the owner point of view, because owner and firm are two separate entities. Okay, now rule number 2 for real account deals with all type of assets. So assets means what? Anything which helps grows the business. Assets, all things which helps in increasing earning capacity of a business. Assets can be converted within 1 year are called current assets. Assets which are kept for longer term we say fixed assets. Okay, so assets, so it deals with all types of asset. Golden rule number 2, debit what comes in, credit what goes out. Nominal rule number 3 deals with all income and expenses. So debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Okay, so there are 3 types of accounts. It deals with persons, therefore all type of capital, liabilities, capital and drawings also fall in this category. Okay, so these are 3 golden rules under traditional approach. Got it? Now under modern approach there are 5 accounts on the basis of accounting equation like assets, expenses, income, capital, liabilities. बोलो ठीक है. तो assets and expenses, these 2 accounts are debit when increases. When increases these are debit, and credit when decreases.
and these three, income, capital and liabilities, you have seen that capital and liabilities are on the same side. accounting equation की एक साइड होती है, जो भी इनकम होती है वो कैपिटल में ऐड होती है, जो भी एक्सपेंसेस है वो कैपिटल में से माइनस होती है, इसीलिए एक्सपेंसेस उसके रिवर्स में चल रहा है और इनकम उसके साथ चल रहा है। यानी कि ये डेबिट कब होगा, जब डिक्रीज होगा, और क्रेडिट कब होगा, जब इंक्रीज होगा। तो व्हेनेवर यू आर आस्क्ड दैट इज दिस अकाउंट एज व्हाट बैलेंस, इस अकाउंट का क्या बैलेंस है, तो हम कहेंगे असेट्स एंड एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस है, क्योंकि वो डेबिट से इंक्रीज हो रहे हैं। कोई भी कैपिटल, इनकम या लाइबिलिटीज़ का हमेशा क्रेडिट बैलेंस है, वो क्योंकि वो क्रेडिट से इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ही आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलो नोट डाउन करो पहले। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट असाइनमेंट का, फोर्थ क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर पर्सनल, रियल और नॉमिनल एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। तो पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हैं। जब भी आपको क्लासीफाई करने को बोलेंगे, मेक टेबल लाइक दिस। नाउ द फर्स्ट आइटम, कमीशन पेड। कमीशन पेड इज एन एक्सपेंस, सो राइट डाउन इन नॉमिनल फर्स्ट commission paid. Fine. Next, commission accrued. Now commission accrued समझ लो पहले, फिर नोट डाउन कर लेना। Commission accrued. Accrued commission means the due but not received. तो this is representative personal. Representative personal हुआ ना, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे सेकेंड नंबर पे, कमीशन accrued. Then third, leasehold property. Leasehold property is an asset, so asset है तो real. Third, leasehold property. Okay. Next, carriage inwards. This is an expense. Expense तो nominal. कैरेज इनवर्ड्स। अब नेक्स्ट ड्राइंग्स बोलो। पर्सनल ड्राइंग्स रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योर, सो इट इज पर्सनल। नेक्स्ट डेटर्स। रियल, नॉमिनल, personal, because debtors are the person or firm to whom goods are sold on credit. तो any firm will sold goods on credit to an individual person or to a firm. So debtors is personal. Rent paid in advance. सब बदतमीज, बेकार, सबकी बुद्धि भ्रष्ट। मैंने क्या बोला था कि चार, कोई भी एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ अब तो सब नहीं बोला था, मेरे ही कान खराब थे। ऑन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये जो चार आइटम्स हैं, दीज आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सो रेंट पेड इन एडवांस, पर्सनल। नेक्स्ट सेवंथ इज एट्थ, कमीशन रिसीव्ड। अच्छा ऐसा हो रहा है ना कि जहाँ मेजॉरिटी जा रही है तो सब मेजॉरिटी के पीछे भाग रहे हैं, अपने दिमाग को इस्तेमाल थोड़ा कम कर रहे हैं।
कमीशन रिसीव्ड, नहीं मैम नॉमिनल, मैम ट्रेडिशनल है तो। कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, इनकम है तो नॉमिनल हुआ ना। मैंने बोला था प्रीपेड सैलरीज, नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल, डिस्काउंट अलाउड, मैम एक्सपेंस हो गया ना, पर्सनल लॉस हो गया। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं अभी, तो क्यों, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैम बताओ, मैं तो पूछ रही हूँ डिस्काउंट अलाउड क्या होगा। मैम आप बताओ। मेरे हिसाब से हो गए रियल। मैम पर्सनल, रियल तो कोई इंसान नहीं है। पर्सनल के कितने कैंडिडेट्स हैं? अकेला है। रियल के कितने कैंडिडेट्स हैं? वही हाथ उठा बेवकूफो, डिस्काउंट क्या है, अलाउड है। हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो हमारा नुकसान नहीं हो रहा क्या? अभी बता। जीत गया तो बोल रहा है, और पर्सनल पे सबसे पहले हाथ खड़ा किया। अकेला हाथ खड़ा था। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, कमीशन अलाउड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, ये सब हमारे इनकम या एक्सपेंस होते हैं, तो ये नॉमिनल होगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पर्सनल भाई कंपनी का नाम है ये। हम नॉमिनल है 12 months। रेंट रिसीव जब पहले हाथ खड़ा कर रहा हूँ नॉमिनल। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पर्सनल रेंट रिसीव पर्सनल। अबे आगे भी तो पढ़ ले इन एडवांस। ओ कोई बात नहीं। रेंट रिसीव्ड पे गाड़ी अटक गई। सबसे होती सेल्स, मैम रियल, बुलंद आवाज में बोलो, क्या बोल रहे हो? रियल, गलत भी, कितनी बुलंद आवाज में बोल रहे हो। नॉमिनल होगा ना यार, सेल्स है तो इनकम है ना। गेम थोड़ी चल रही है ये। अच्छा चल नाउ द लास्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। होता क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? वो जितने है नहीं उससे ज्यादा, हम उससे ज़्यादा ड्राफ्ट कर दें मैम। हाँ, जितने हमारे अकाउंट में पैसे हैं उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिए, यस मैम। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा? पर्सनल, क्योंकि लायबिलिटी है ना, लायबिलिटीज हमेशा पर्सनल में आती हैं। कौन सा नंबर है? 14। तुक्का था, तुक्का 33% 33.33। ठीक है, चलो पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे करते हैं जी। नाउ द सेम क्वेश्चन विद मॉडर्न अप्रोच। स्टार्ट। 5 हेड्स होते हैं, असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। चलो, कमीशन पेड, एक्सपेंस, एक्सपेंस,
नेक्स्ट, कमीशन एक्रूड, लायबिलिटी एक ही जन थोड़ा ना बताएगा। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो फ्यूचर में काम हो सकता ऑब्लिगेशन टू पे, जो मैं पे करनी है। कमीशन एक्रूड का मतलब क्या होता है? द इनकम विच इज़ ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो लायबिलिटी कैसे हो सकती है? रिवेन्यू तो तब होगा जब हमें रिसीव हो जाए कुछ। कमीशन एक्रूड एसेट। नेक्स्ट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, है। एसेट एसेट। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ट्स, एक्सपेंस। होता क्या है? कैरेज इनवर्ट रिक्शे का भाड़ा, सामान आता है ना रिक्शे में, हाँ हाँ उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ट्स। ड्राइंग्स, कैपिटल कैपिटल ड्राइंग्स इज एसोसिएटेड विद कैपिटल प्रोप्राइटर, तो दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर कैपिटल। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं डेटर्स? इनको क्रेडिट पे सामान बेचना। डेट अभी तो बताया था मैंने। डेटर्स मीन्स जिनको हमने उधार पे सामान बेचा है, ठीक है, तो एसेट हुए। रेंट पेड इन एडवांस, एक्सपेंस मिल जाएगा। Makes sense. Asset है। Advance नहीं करेंगे ना। रेंट पेड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड, रेवेन्यू अच्छा नहीं कमीशन हाँ रेवेन्यू एक्सीडेंट प्रीपेड सैलरीज। अभी लिख लेना, पहले समझ लो। एक्सपेंस ये मुझे इतनी बार क्यों बोलना पड़ता है क्लास में? क्या करोगे इस टाइम को बचा के जब सब लिख रहे होंगे? पहले इस पर दिमाग लगाओ थोड़ा, इसको समझो क्या है और चल रहा है ये मामला। एक्सपेंस प्रीपेड सैलरीज, एक्सपेंस ये क्या होता है? मुंह से बोलो। एक्सपेंस हाँ तो मुंह से बोलना। ये एग्जाम में ये दिखा कर आओगे, इसे ठेंगा दिखाना कहते हैं। ओके नहीं ठेंगा दिखाना। हाँ, प्रीपेड सैलरीज क्या होती हैं? सैलरी पेड इन एडवांस। Salary paid in advance. Now we have right to acquire those services for which we paid advance salary. Asset ही है। हमें वही चाहिए अभी देख रेंट पेड एडवांस ही सारा चीज़ें अभी डिस्काउंट अलाउड। अभी मैं बोल के चुकी हूँ कि समझने पे कंसंट्रेट करो। सबको अलग अलग बोलना पड़ता है। मुझे तो यही बात ही नहीं समझ में आती कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती है कि मुझे सबको अलग अलग बोलना पड़ता है। एक बार उसको बोल रही हूँ, फिर उधर बोल रही हूँ, फिर इधर बोल रही हूँ। तुम्हें इस चीज़ का लॉजिक समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तुम लोग लिखने में लग जाते हो, तुम्हें ये होश नहीं होता कि क्लास में क्या चल रहा है। या तो इतने इंटेलिजेंट हो या तो इतना दिमाग है कि भाई हम साइमल्टेनियसली सब कर सकते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जितनी भी बड़ी क्लासेस होती हैं कॉलेज वगैरह में, वो सब यही करते हैं, टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, साथ साथ लिख रहे होते हैं, क्योंकि एक मेच्योरिटी आ चुकी होती है तब तक। लेकिन अभी आप लोगों में वो मेच्योरिटी तो है नहीं, एट ए टाइम एक ही काम कर पाते हो आप लोग। जब लिख रहे हो तो लिखने में ध्यान जाता है, फिर ये भूल जाते हो कि हम किस पर डिस्कस कर रहे थे, फिर पूछूंगे मैम क्या था, दोबारा बोलना। इसलिए मैं बार बार मना करती हूँ कि, और जब मैं बोलूंगी कि लिख लो, तब क्या करोगे खाली बैठ के बातें, ये इसको तंग किया उसको तंग किया, ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? बार बार मुझे, मतलब 40 मिनट 50 मिनट्स की क्लास में मैं 3 बार बोल चुकी हूँ और रोज बोल रही हूँ, समझ में नहीं आता। कमाल है यार। कहाँ थे हम? नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड। एक्सपेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इन इंडिया, एसेट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, किसी ने आपको एडवांस पेमेंट कर दी, किसी ने आपको एडवांस पेमेंट कर दी, किसी ने आपको एडवांस पेमेंट कर दी। आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो गया कि अब आपको तो वो सर्विसेज उन्हें देनी ही पड़ेंगी। लाइबिलिटी, सेल्स, सेल्स, और बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? अब नोट करिए, कैसे बच्चे हो ना, डांट खाने में बड़ा मजा आता है। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.